Hello, everybody. Welcome back yet again to another session of the Tech Talk. And I hope you are really enjoying this festive season. And we're really glad to be sharing such great knowledge with you at this wonderful time. So, welcome again. And I'm really happy that this particular session could be released at this time, considering that media.net has just come to the college for recruitment for internships and hopefully the jobs as well. So, the candidate we have today will answer so many questions that you have about this particular process, as well as another thing that is roaming around in the minds of young engineers at this time, which is GSOC. So we have a lot to address with him. He is one of the most accomplished seniors, I would say, who have passed out from the college, and he was the former general secretary of Code IST, and now he's working as a site reliability engineer SRE at media.net. So you'll get to know much more about him during the session. So I think we should have a formal welcome for Rahulendra Bhaiya. How are you, Bhaiya? Yeah, thank you so much for hosting me. Yeah, I'm good. I'm good. What about you? I'm also fine. I'm really happy that I could get Yeah, to talk to you and share your knowledge with so many people. yeah. Thank you. Thank you so much for having me. Right. So I think we can get into the interview straight away. And obviously, Sure. the burning question right now is related to your work at the moment. So tell us a little bit about it, the work that you have. What is SRE, and how is the culture in media.net, and how do you feel about it overall? Sure. Sure. So Samarth, it's basically us a guy with some operational task, and he is solving with software engineering skill. ठीक है? तो होता क्या है basically people use app and all. तो startups में ना ये छोटे मोटे ऐप होते हैं and जो user base होता है ना कि that's not very big, है ना? But when you go with a Facebook, WhatsApp, इसके millions of users होते हैं, millions and billions of users. तो उसको Hmm. scale करना, ठीक है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे सिस्टम को, उसको मेंटेन करना, रिलायबल देखना सर्विस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो सब कुछ वो हमारे हाथ में होता है. तो व्हाट हैपेंस इन हियर, वी यूज्ड टू हैव दिस डेवऑप्स कल्चर बिफोर. तो वो लोग ऑपरेशन टास्क करते थे, बट दैट वाज यूज्ड टू बी लाइक मैनुअल टास्क. बट एसआरई वाज समथिंग कि गूगल ने उसको बनाया. ऑफ कोर्स गूगल हु कॉइन्ड दिस पोजीशन, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. सो व्हाट दे डिड कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके पास, उनको कुछ कुछ को ऐसे मिला के एक टीम बनाया. दैट वाज कॉल्ड लाइक एसआरई टीम, समथिंग समथिंग लाइक दैट. और वो लोग टास्क को जो मैनुअल करते थे उसको विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सब कुछ ऑटोमेट करने लगे. एंड दैट्स हाउ लाइक गूगल search engine became so fast, and like they come up with many different things like Google Drive and all. So the cloud system what you get right now with the Google, that was provided by SRA team over there. And that's how this particular tag became very popular in the industry. So Right, that's right. how this is in MediaNet.net as well. Okay, And regarding okay. like if you what I feel about it, so yeah, this this how this fit me, because I used to do this CTF, this एक कॉन्टेस्ट होता था सिक्योरिटी इंथुसियास्ट के लिए. तो काफ़ी मुझे उससे सीखने को मिला, एंड that's how it's helping me right now in my job. Okay, okay. So CTF would be capture the flag for security Yeah, lovers. capture the flag. Yeah, sorry Right, for that, right, मैंने बताया नहीं, it's a capture the flag. right, right. ओके, सो मतलब आपको कैप्चर द फ्लैग में जब आप कॉलेज में आए तो इंटरेस्ट आया, लेकिन जो आपकी जर्नी है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, कब स्ट्राइक किया आपको, और मतलब शुरू शुरू में क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप छोटे थे? व्हाट वाज इट दैट रियली मोटिवेटेड यू टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड व्हेन डिड योर जर्नी एक्चुअली स्टार्ट, एंड व्हाट डिड यू एक्सप्लोर एट दैट Yeah. टाइम? Yeah, I would say it's like छोटे बच्चों के दिमाग वाली चीज़ है. क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता था कि मेरा एक छोटा सा फोटोशॉप था, ठीक है, मतलब वी यूज टू हैव दिस फोटो स्टूडियो. तो उधर वी यूज कंप्यूटर आया पहली बार हमारे घर पे. उधर मेरे देखने को मिला कि लाइक वी यूज टू प्ले विथ फोटोशॉप, उससे फोटो बनाते थे एंड ऑल. सो इट वाज kind of very like it fascinated me, kind of like how these things are working and all. like एक प्रिंटर पे फोटो कैसे निकल रहा है, like how this is working. तो ये मुझे सीखना था कि कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें. तो तब से मुझे मतलब ऐसे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट होने लगा था. एंड आई थॉट कि ऐसे कभी जाके in sometime in near future I'll try to you know pursue my higher education in computer science. So here I am. Right, right. I'm so glad that you could reach the place that you wanted to. So after you did reach that place, when you actually entered on the scene of college, and we're so thankful that you did.
what is it that you discovered? Like कौन सी opportunities आपके सामने आई कॉलेज में आने के बाद? हमको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर myriad opportunities आती हैं सामने. So what was it that was striking you, and what all did you choose? Yeah, so basically when I entered the college, तो पहले ना बहुत सारे क्लब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट ईयर में. तुम्हारे साथ भी होंगे, सारे जूनियर्स के साथ भी होंगे, आई एम श्योर. तो वी यूज टू अटेंड दिस रोबोटिक्स का सेशंस, देन कोड आईएसटी का सेशंस एंड ऑल. तो रोबोटिक्स बहुत अच्छा लगा था मुझे उधर. मतलब देखा था कि मतलब व्हाट कोड कैन डू, लाइक छोटे से रोबोट्स बना के आप छोटे मोटे टास्क कंप्लीट कर सकते हो. तो बहुत अच्छा लगा था हमें. Then I explored this code IST sessions में गए. तो there we got to know about computer coding कि मतलब उधर dynamic programming क्या होता है and like data structure algorithm क्या होता है in our first year. तो I actually had some prior knowledge about C. मतलब मैं ऐसे 12th क्लास में ऐसे में देखा किया था. C, C++, ये सब था prior knowledge, but we didn't know about core computer science का skill like data structure and algorithm and what is computer coding. तो उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया. एंड मतलब उतना उतना मतलब क्लिक नहीं हुआ. बट देन व्हाट हैपेंड कि मुझे एक सीनियर ने, जो अरुण श्रीवास्तव करके थे, आई थिंक ही वाज इन थर्ड ईयर. सो उन्होंने सीटीएफ के बारे में बताया कि व्हाट इज सीटीएफ, लाइक व्हाट इज कैप्चर द फ्लैग, सॉरी. तो ये बेसिकली जो सिक्योरिटी करते हैं ना, मतलब हैकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं. तो उसके लिए एक कॉन्टेस्ट टाइप का है. तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया बहुत. ठीक है. सो and then I also went with the machine learning part and all. So that's what in a nutshell I can say, like ये मेरा मतलब overall मैंने जो opportunities मुझे मिली, मैंने उसको explore किया, उसको discover किया. That's what I did. Right. I think I would like to bring to the notice of my viewers that Rahul Bhaiya has actually explored a lot of fields. Like he said in very short, he explored competitive coding, he explored machine learning, he explored network security. And I think that is why he's one of the people who can answer a lot of these questions in the most appropriate way, because he has a very good overview of all these fields and what the significance of each is in the industry. So I think with that knowledge, everybody can view his answers in that particular perspective. So Rahul Bhaiya, jaise you said, you first learnt about CC, and like we've interviewed a lot of your batchmates, a lot of them were involved in CC to a very significant extent. So like you also said, you did not have that much of interest in that. So what was that about, and what was the impact of that particular aspect of your college life on you? Yeah, that's a really good question. So basically what happened कि CC हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड इट वाज बेसिकली छोटे मोटे साइट्स थे उस समय, कोड शेफ एंड उस समय कोड फोर्सेस के बारे में मालूम नहीं था हमें, आईसीपीसी के बारे में मालूम नहीं था हमें. तो कोड फोर्सेस एंड हैकर रहते सब पे हम लोग ट्राई करते थे कि. तो आई ट्राइड विथ माई टीम, मतलब जो हमारे छोटे मोटे टीम थे, जो हमारे लोग साथ में थे, हम लोग करते थे साथ में. तो आई फेल्ट ना कि मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग समथिंग, जो मैं कोड कर रहा हूँ, आई एम गिविंग सम इनपुट एंड गेटिंग सम आउटपुट. तो मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा वाला फील आ रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है कुछ. सो उसी समय मुझे सीटीएफ के बारे में पता चल गया था. तो सीटीएफ वाज इट्स अ काइंड ऑफ अ पजल थिंग, जैसे कि तुम कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उसको खोजना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था. बट इन द एंड सीसी इज़ व्हाट यू नीड इन इंडिया. जब भी तुम कोई कंपनी में बैठोगे या फिर कोई इंटर्नशिप के लिए बैठोगे, तो यू विल नीड टू हैव दिस. और कोडिंग नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, कोडिंग इज समथिंग दैट एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड लर्न. ठीक है. आई वुड से कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम स्किल्स जो अच्छे वाले होने चाहिए थे, जो शार्प स्किल होने चाहिए थे, वो मेरे पास उस समय नहीं था. तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट किया बाद में जाके कि मतलब मैं सोचता था कि पहले कि ऐसे सिक्योरिटी वाले सीख के या फिर मशीन लर्निंग सीख के तो यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन गेट एन इंटर्नशिप, बट यू कैंट. तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी, बट मेजर ऑफ द कंपनीज विल दे फाइंड कि तुम्हारे अंदर ये छोटे मोटे नहीं, जैसे कि डीएसएलगो को देख के वो लोग देखते हैं कि वो स्किल है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं तुम्हारे पास. बिकॉज दे व्हाट दे कैन डू कि तुमको वो हायर करेंगे, उसके बाद तुमको जो भी उनको स्किल सिखाना है वो सिखा देंगे 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर. बट व्हाट दे लुक फॉर कि वो देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बंदे में है कि नहीं, बंदी में है कि नहीं. सो एंड फॉर checking that, DSLGO skill is like
इट्स अ गुड टूल फॉर दैट, तो वो लोग उसे चेक करते हैं, तो दैट व्हाट आई रिग्रेटेड लेटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब अगर कोई कंपनी आपको किसी स्पेसिफिकली सिक्योरिटी बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड रोल के लिए लेना भी चाहती है, तो फिर भी वो देखेगी कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है कि नहीं, जो कि आई थिंक बहुत ही वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बेसिकली हर सॉफ्टवेयर का। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इवन इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इवन इफ यू आर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो तुम समझ, तुमने भी मशीन लर्निंग बहुत सारा किया है, तो ऐसे विदाउट नोइंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तुम कुछ भी ऐसे रैंडमली ब्रूट फोर्स किए जा रहे हो, तो इट विल टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। व्हेन यू हैव दिस नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो उससे क्या होता है कि यू कैन मेक योर कोड ऑप्टिमाइज्ड, राइट? तो यस। वो आनी चाहिए। जैसे कि कोई ऐप भी बना रहे हो तुम, मैसेजिंग ऐप है, मैं अभी लिखा तुमको और पहुंचे तुम्हारे 10 मिनट बाद, तो इट्स नॉट गुड। सो हम्म। ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए तुमको डीएसएनएल को आना चाहिए। एंड बिल्कुल। या सो बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि कोई लोग कहते हैं कि कोडिंग नहीं आता मुझे, या फिर तो लोगों को कहना चाहिए कि डीएस एंड एल्गो नहीं आता अच्छे से। कोडिंग तो सबको आना चाहिए, भले वो नेटवर्क इंजीनियर हो, सॉरी सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में हो, या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी में हो, मशीन लर्निंग में हो, कोई भी फील्ड हो, you need to learn, you need to like you have to learn coding, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डीएस एंड ए इन मशीन लर्निंग एंड ऑल आल्सो, सो you also have explored your fair share of machine learning, so tell us a little bit about that. I know you went for an internship abroad as well, so a little bit about that, how you entered into machine learning, what motivated you, and how was your experience overall? या सो बेसिकली हुआ क्या कि मैं सीटीएफ करते करते मुझे ना एक इंटरेस्टिंग वाला उसका फॉर्म देखा, एक फॉर्मेट था उसका, कि वेयर यू ट्रेन योर कंप्यूटर और लोकल मशीन विथ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और वो जाके एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था जिसके पास कुछ वल्नरेबिलिटी होती थी, एंड योर कंप्यूटर नोज स्टफ कि कैसे उसको सर्च करना है, कैसे मतलब वो वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके तुमको सबमिट करना है। सो ये सब कुछ अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि कुछ मैनुअल करना है, तो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर दैट, ठीक है? Right. तो उधर से मुझे उधर मुझे से मतलब इसके बारे में समझ में आया कि लाइक व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन इट्स ओन। So and it's you know like it's a very hot topic right now, like people talk about machine learning, people कहीं भी जाके implement करते हैं आजकल, तो it was a very hot topic at that time. तो मैंने explore किया, and it it revolves around mathematics, you know formulas and all, तो mathematics मुझे बचपन से ही पसंद था, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, तो then I explored machine learning। फिर उसी के साथ मैंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया अब्रॉड, तो फॉर्चुनेटली मैंने एक छोटे से स्टार्टअप में वहाँ पे था, वहाँ पे आई गॉट एन इंटर्नशिप, तो उधर मैंने ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क पे काम किया। इट वाज रियली Okay. गुड एक्सपीरियंस। राइट राइट। तो ओके, अल्टीमेटली लेकिन आपने चूज किया इंडिया में प्लेसमेंट लेना, जो कि आई थिंक अल्टीमेटली काफी लोगों को करना पड़ता है ड्यू टू वेरियस अदर कंसिडरेशंस आल्सो व्हिच वी मे नॉट गेट इनटू एट द मोमेंट, बट आपके लिए जैसे आपने बोला आप कंपेटिटिव कोडिंग में उतना कंफर्टेबल नहीं थे, तो मतलब इनिशियली जो पीरियड था प्लेसमेंट्स का, जब आई कंपनी स्टार्टिंग में शुरू हुआ सब कुछ लोग प्लेस हो रहे थे, तो वो आपके लिए कैसा टाइम था, और मतलब उस टाइम पे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब मैंने तो मज़ा तो बहुत किया था, मतलब जब मैं बाहर गया तो मज़े करके आ रहा हूँ, फिर आते आते देख रहा है कि मतलब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है? हाँ। एंड फिर मुझे लगा कि यार मेरे को तो आता नहीं है डीएसएल को, अब क्या करें? कि मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि मशीन लर्निंग तो अच्छा सीख लिया है मैंने, एक इंटर्नशिप भी कर लिया है, ठीक है? एंड आई नो लिटिल बिट अबाउट लाइक हाउ सिस्टम कोर सिस्टम वर्क्स, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज था, फिर नेटवर्किंग में अच्छा खासा नॉलेज था, बट कि ये जब तक तुमको मतलब इंडिया में क्या है कि जब तक राउंड में यू विल सी कि इसे डीएसएल गो वाले क्वेश्चन रहते थे, ठीक है? तो सारा मजा किरकिरा हो गया कि मतलब उधर से आया तो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा सा वो हुआ कि काइंड ऑफ कि डर सा बैठ गया कि मतलब मुझे तो आता नहीं है, मैंने किया भी नहीं बहुत पहले, एंड अभी कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें हुई, तो स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने ट्राई किया, खुद से ही ट्राई किया, मतलब खुद से सीसी करने का ट्राई किया। सीसी एज इन मतलब मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं कह सकते हो कि इंटरव्यू कोडिंग, तो इंटरव्यू के लिए राइट तैयारी किया राइट। मैंने, या तो उसके लिए लीड कोड या फिर गिग्स फॉर गिग्स ये सब पे मैंने कोशिश की कि
सीखने की उस पर, तो उसी में लग गया मैंने पहले ट्राई किया कि कुछ कंपनी हो जो ऐसे मतलब ये ना देखती हो, बट ऐसा कोई कंपनी आती नहीं थी। जो भी कंपनी ओके, मैं सेलेक्ट करता था उसमें जो भी कंपनी होती थी वो पहला राउंड होता था कि मतलब यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चंस, तो उसके लिए कोई चारा नहीं बचा ना, आपको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो हम लोगों ने जो मतलब यू नीड अ टीम, ये भी होना चाहिए कि हर चीज़ में ना एक टीम बना के करोगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास कुछ लोग थे जो मतलब उस समय जो लोग उतने अच्छे नहीं थे, तो हम लोगों ने बैठ के एक ग्रुप बनाया, फिर उसमें काम करते थे, लीड कोड करते थे और फिर इंटरव्यू देते थे। तो मैंने बहुत सारी कंपनी में बैठा भी नहीं, जो भी मतलब मुझे कंपनी लगी कि हाँ ठीक है ये अच्छी कंपनी है, ये कंपनी है, तो उसमें मैं बैठा, उसमें ट्राई किया, आई फेस रिजेक्शन। और फिर वही था कि मतलब यू थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है, फिर धीरे धीरे मतलब यू बिल्ड स्टफ कि ठीक है और भी ट्राई करेंगे, और जितने भी तुम रिजेक्शन लेते हो तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है कि ठीक है मैंने ये वाले इंटरव्यू में ये गलती की या ये वाले इंटरव्यू में ये गलती की, तो उससे भी चीज़ें सीखने को मिलती है, उसे हमें सीखना चाहिए कि दोबारा वो वाली चीज़ें गलती ना हो। ठीक है, एब्सोल्युटली। या सो दैट्स द की पॉइंट लाइक पीपल शुड गेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट थिंग, एंड फिर उसके बाद मेरा नेट आया, तो उसके बाद आई गॉट देयर, सो दैट्स हाउ लाइक द प्लेसमेंट सीजन फॉर मी। राइट, तो या आई थिंक मीडिया डॉट नेट की पर आ जाते हैं हम सीधा। इट्स बिन अ ठीक। प्रीटी लॉन्ग वेट फॉर द पीपल आई थिंक, बट मीडिया डॉट नेट में क्या चीज थी जो अलग हुई और क्या चीज क्लिक करी आपको? पहले तो आप मुझे ये बताओ, उसके बाद थोड़ा हम्म। आप डिस्क्रिप्टिव वे में बताना कि मतलब मीडिया डॉट नेट का प्रोसेस कैसा होता है, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे इस मोमेंट पे कि हाउ व्हेन मीडिया डॉट नेट कम्स व्हाट विल दे डू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल दे आस्क, हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर, तो वो सब थोड़ा अभी आप बताओ। या तो बेसिकली जब मिडल हमारे लिए आया था, तो उस समय दे केम विद टू पोजीशंस, तो एक तो एसडी था एंड अनदर वाज एसआरई। सो पीपल डिडंट नो अबाउट एसआरई कि एसआरई क्या है, यू नो पीपल वर वेरी रिलक्टेंट अबाउट इट, एंड उसके बाद उसमें कर भी नहीं रहे थे कि पता नहीं क्या है कैसे है। पीपल ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एसडी बिकॉज मिडल नेट का वैसा रेपुटेशन था कि दे दे आर गुड कंपनी एंड एसडी का काम अच्छा है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एसआरई वाला मैंने फिर सर्च किया, मुझे भी एसआरई के बारे में उसके पहले तक मालूम नहीं था। आई न्यू अबाउट डेवऑप्स, लेकिन एसआरई क्या होते हैं वो मुझे पता नहीं था। तो देन आई सर्च ऑन गूगल, देन आई फाउंड आउट कि ये गूगल ने ही बनाया है। या तो यू नो तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ा एसआरई का काम क्या है कैसा है, एंड व्हाट दे डू। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी एज इन मैंने देखा कि जो मैंने सीखा है वही चीज़ इधर चाहिए, तो somehow I can try, और उसके पहले तक मतलब उस समय तक मेरा लीड कोड पे या फिर ये जो डेटा साइंस एल्गोरिदम था वो मेरा थोड़ा ठीक हो गया था। राइट, आई इस पे भी मैं एक थोड़ा सा पॉइंट दूंगा कि मतलब ना इट्स नॉट अ बिग जॉब, इट्स नॉट अ बिग डील कि डीएसएल को तुम थोड़ा डरते हो, बस यही चीज़ है। बाकी इफ़ यू गिव्स लाइक 6 मंथ्स और अच्छे से मेहनत करोगे तो यू कैन ओवरकम दिस फियर। तो ये डीएसएल वाला उस समय तक ठीक हो गया था, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं हुआ था क्योंकि उतना भी होलाइटली मैं कर नहीं रहा था। तो इसमें फर्स्ट राउंड निकला था मेरा एसडी के लिए, एंड एसआरई के लिए भी निकला था। बट जब मैंने एसआरई के बारे में पढ़ा तो आई वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट कि ठीक है मैं यही करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्लिक हो रहा है, अपने अपने से मिल रहा है। तो कंपनी आया कंपनी आया दिन मैं उस समय वेकेशन गया था कि वी फाउंड कि थोड़ा सा समय है घूम के आ जाते हैं। आई थिंक अच्छा, दैट वाज टाइम ऑफ दशहरा और समथिंग, अक्टूबर में ही हुआ था, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो अक्टूबर के समय दशहरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि ठीक है हम लोग बाद में आएंगे। तो थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग चले गए घूमने के लिए। घूम के जब वापस आए तो तब तक तो उतना प्रिपरेशन नहीं था, ठीक है देखते हैं। तो वो दोनों निकल गया, फिर उसके बाद कंपनी आई। ये सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ था उस समय, ऐसे कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हुआ था सब कुछ, तो दे वर नॉट इन द कैंपस व्हेन दे केम टू कैंपस। एंड बेसिकली इट वाज द फर्स्ट टाइम मीडिया डॉट नेट केम टू द कैंपस। इसके पहले जब भी हुआ था सब कुछ ऑफ कैंपस ही हुआ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो वो लोग ओके, कैंपस आए, ठीक है। कैंपस आए तो एसडी के लिए राउंड हुआ। उसके पहले क्या था कि एसआरई के लिए ना मशीन राउंड होता था, ठीक है। तो वो पहले मैं बैठे, उसके लिए हम लोग बैठे। तो मशीन राउंड में देयर वर 3 क्वेश्चंस, आई सॉ 3 ऑफ देम। सो लग रहा था कि सब कुछ चल रहा है अच्छे से, सब कुछ है ना, बिल्कुल, एक पजल है जो कि एकदम फिक्स हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है वो वाला राउंड चला गया, एंड उसके बाद मैं फिर भाग के गया एसडी के लिए, ठीक है। एसडी का फिर सेकंड राउंड था, तो उसमें इंटरव्यू गया, लेकिन मतलब उतना अच्छा नहीं गया। सेकंड राउंड में मैंने आंसर किया था, बट आई कुडंट सॉल्व द
couldn't solve the problem on paper, ठीक है, मैंने बोल दिया था कि solution क्या है, लेकिन पेपर पे मैं लिख नहीं पाया था वो कोड। तो ठीक है, वो मतलब उसके लिए उसका रिजल्ट नहीं आया, तब तक इसका रिजल्ट आ गया कि ठीक है, तुम मशीन राउंड में तुम पास हो गए हो, तो उसके लिए तुम अब वो था, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, 1-on-1 इंटरव्यू, 1-on-1 कह सकते हैं, फिर 2-on-1, उधर 2 लोग थे, मैं इधर एक था। तो फिर उसके बाद वो दैट राउंड वेल्ड फॉर लाइक 3 hours, तो सब कुछ पूछे थे उधर, मतलब आई रिमेम्बर। तो लाइक डीएस एल्गो भी पूछे थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, एंड दे इवन वेंट टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर तक चले गए थे। तो ऐसे My और God. भी अच्छा लग रहा था कि ठीक है, चलते हैं, बात करते रहते हैं। तो इट वाज वेरी इंटरैक्टिव सेशन, इंटरव्यू कम था और इंटरैक्टिव सेशन बहुत ज़्यादा था। तो Right. वो भी अच्छा गया। उसके बाद ऐसा होता है ना कि जब व्हेन एवरीथिंग गोज वेल, तुमको लग जाता है कि ठीक है, लगता है कि अब मतलब ये भी अच्छा हो रहा है, तो उसमें भी तुम बह जाते हो। तो वैसा वाला हो रहा था कि ठीक है, बह जाते हैं इसमें, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आने दो, बात करते हैं, इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि अंदर से ठीक है, लगता है वो हो जाएगा। तब भी मतलब एकदम आई वाज नॉट श्योर। तो फिर उसके बाद जैसे ही निकला मैं, तो फिर दे वर सेइंग कि ठीक है, एचआर राउंड है। तो एचआर राउंड कहने के लिए एचआर राउंड था। व्हेन आई वेंट इनसाइड, दे सेड कि ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। जो उनके हेड थे वो आए थे, तो ही सेड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल, एंड ही शेक हैंड। तो उसके बाद वो लोग बोले कि वुड यू लाइक टू डू इंटर्नशिप विद अस इन 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 अपकमिंग वैकेशंस। तो मैंने बोला कि हाँ, व्हाई नॉट, विल सी। तो उसी समय मुझे इंटर्नशिप के लिए भी ऑफर मिल गया था, एंड उसी समय फिर इसके लिए भी ऑफर दे दिए थे। तो दैट्स व्हाट हैपेंड दैट डे। राइट। तो आई थिंक जैसे आपने बोला एग्जैक्टली कि मतलब एकदम सारे पजल्स के पीसेस एकदम फिट हो रहे थे, तो आई थिंक या वो या हर एंड किसी एंड को आई थिंक। एंड व्हाट हैपेंड, लाइक जब आई गॉट द जॉब, उसके बाद इट वाज नॉट, मतलब लग नहीं रहा था कि मैं उतना मैं खुश हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, बट आई थिंक आई वाज हैप्पी। बट आई वाज मोर हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स और ज़्यादा खुश थे बाहर, वो लोग वेट कर रहे थे, एंड अच्छा। आई डिडंट हैव माय लंच फॉर लाइक, आई डिडंट एट माय लंच, एंड वो भी था कि पूरा भूखे भूखे सब कुछ चल रहा था उस दिन। तो अच्छा गया उस दिन। चलो, इट वाज आई वेरी थिंक गुड, दैट्स अ या वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट यू विल चेरिश ऑल योर लाइफ। तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस एक्सपीरियंस के अंदर। तो जैसे आपने मेरे को थोड़ा सा बताया डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर तक वो लोग पहुंच गए। तो उसके बाद जैसे अभी जब मीडिया डॉट नेट इंटर्नशिप के लिए आ रही है, तो फिर उसके दिमाग में क्या है? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन देयर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स? Okay, so if they are coming for internship, I would say you need to focus on DS and Algo solely, because what happens कि when they are going for internship, तो वो लोग ये नहीं देखते हैं कि you know those positions are very generalized। तो तुम वहाँ पे जाते हो, फिर देखते हो कि ठीक है कि तुम्हारे मैनेजर कॉमन होंगे। मतलब होता क्या है कि वहाँ पे क्या, आई थिंक एवरी कंपनी यही होता होगा कि एक एसडी टीम है, तो उसके साथ एसआरए टीम है, तो दे वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं वो लोग, ठीक है। राइट। तो उनकी उनके मैनेजर भी कॉमन होते हैं, ठीक है। सो उनके उनके मैनेजर भी कॉमन होते हैं। फिर होता क्या है कि जब आई थिंक जब वो इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो यू विल वर्क अंडर योर मैनेजर, और फिर मैनेजर देखते हैं कि तुमको क्या काम दिया जा सकता है। तो वो एसआरई का भी काम हो सकता है, एसडी का भी काम हो सकता है। तो वहाँ पे जाकर जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, फिर वो थोड़ा सा टीम टीम स्पेसिफिक हो जाएगा। तो अभी राइट। तो आई थिंक पीपल शुड फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो आई थिंक वही राउंड होएगा, उससे ज़्यादा क्योंकि पीपल डोंट नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग टिल नाउ, आई गेस। जो यस, कि अभी नॉट टिल नाउ, यस। या सो दैट्स द ओनली स्क्रीनिंग थिंग दे कैन डू। तो बस वो डीएस एल्गो ही देखेंगे तुम्हारा। तो आई आई सजेस्ट कि उस पे सबको ध्यान देना चाहिए। राइट। राइट। ओके। या ओके। सो आई थिंक मीडिया डॉट नेट को हमने सफिशिएंटली एड्रेस कर लिया है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट बिग माइलस्टोन इन योर जर्नी, which is GSOC. And I think equally a number of people will be interested in this field as well, if not more. So let us start with the whole process. I mean, what got you into it, and what was the idea that made you want to go for this very difficult thing, I would say. So how was the starting? How was the beginning? yeah I would love to share my journey with all of you. तो
कम से कम मतलब कुछ लोग भी देख के उसके लिए इंस्पायर हो जाए तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी. या सो आई ट्राई टू एड्रेस एवरी पॉइंट ऑफ योर्स. सो हुआ क्या कि मतलब आई गॉट द जॉब. फिर आई ऑलवेज वांटेड टू डू जी सॉक. ठीक है. तो होता क्या था कि मेरे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन आईआईटीज. ठीक है. तो दे यूज्ड टू टेल मी कि ऐसे जी सॉक वाला कुछ होता है एंड ऑल. तो मैं भी सर्च किया था कि जी सॉक क्या होता है एंड ऑल. तो थर्ड ईयर या फिर सेकंड ईयर में भी मैंने ट्राई किया था. ट्राई एज इन मतलब मैंने देखा था बट ट्राई नहीं किया क्योंकि होता क्या है कि इसके थोड़ा समय देना पड़ता है और समय देने के लिए यू हैव टू जहाँ पे तुम ज़्यादा समय दे रहे हो अभी जैसे कि इंटरव्यू हो गया ये सब चीज़ें हो गई तो उधर से थोड़ा समय निकालना पड़ेगा. तो अभी क्या था कि मेरे पास पूरा फ्री टाइम था तो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं जो भी है इसमें ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है. एंड इट्स माई लाइक लास्ट चांस व्हेन आई एम कॉलेज. तो क्योंकि व्हेन यू आर स्टूडेंट तभी दे सकते हो रिसर्च. इनफैक्ट लाइक यू कैन व्हेन आई आर डूइंग मास्टर्स और पीएचडी तो तब भी कर सकते हो. अभी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं जीसॉक के रूल्स में दैट यू कैन ऑल्सो डू पार्टिसिपेट इन जीसॉक इफ यू आर रिलेटेड विद सम बूट कैंप्स कोडिंग बूट कैंप्स तब भी दे सकते हो. ओके. तो हाँ तो वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो मैंने वही ट्राई किया कि चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है. तो ये स्टार्ट हुआ वही फरवरी के आई थिंक एंड वाले वीक में. तो मैंने देखा कि क्योंकि वो मार्च में वो लोग लिस्ट करते हैं सब मार्च में लिस्ट करते हैं. तो मैंने फरवरी में वही सब चीज़ देखा. तो आई जस्ट रोट सिंपल स्क्रिप्ट इन पाइथन की देखते हैं कि कौन कौन से 5 साल पिछले ये लोग कहते हैं तो वो कौन कौन से कॉमन है उसको उनको देखा मैंने. देखने के बाद मैंने ट्राई किया. जैसे सर्न हमेशा आता है ईच एंड एवरी ईयर. तो बहुत सालों से वो आ रहा है तो आई ट्राइड एट सर्न. तो सर्न में मैंने जो मेंटर्स थे उनको कांटेक्ट किया कि देखा कि क्या काम है कैसे हैं. तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे बात किया थोड़ा कांटेक्ट बना के रखा उनके साथ. तो बेसिकली आई चोज 2 प्रोजेक्ट्स इन सर्न एंड 1 प्रोजेक्ट इन उस समय एंड्रॉयड का एक काइंड ऑफ गूगल का ही है वो क्योंकि गूगल इज पार्ट ऑफ सॉरी एंड्रॉयड इज पार्ट ऑफ गूगल. तो हुआ था क्या कि उसको एंड्रॉयड में भी एक चीज़ें थी जो कि इट रिलेटेड टू ग्राफिक्स. तो उधर भी मैंने ट्राई किया. तो उधर उतना लग नहीं रहा था कि होगा क्योंकि इट वॉज वेरी यू नो वेरी स्पेसिफिक टू ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो थोड़ा उसमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए था. मैंने ट्राई किया था बट ज़्यादा मैं इंक्लाइंट था सर्न की तरफ. तो मैंने 2 सर्न में प्रोजेक्ट्स खोजे थे. उसमें मैंने मेंटर से बात करना स्टार्ट किया. वी एक्सचेंज ईमेल्स एंड वी ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स जो बग्स कह सकते हैं या फिर इश्यूज़ कह सकते हो जो ऑनगोइंग इश्यूज़ थे उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की. तो इससे क्या होता है कि व्हाट हैपेंस कि जब तुम मेंटर से बात करते हो चीज़ें उनके साथ कांटेक्ट बना के रखते हो तो ये ना पहला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो गया जिसका का समझो कि राइट. नाउ मेंटर नो एक मेंटर्स नो कि तुम डेडिकेटेड हो इस काम के लिए दैट यू वुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस कि बाद में तुमको जब सेलेक्ट करेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ ये लड़का काम करता था या लड़की जो भी थे जो ये लोग काम करते हैं तो इनको ज़्यादा सेलेक्ट करने में मतलब हमारा फ़ायदा है. तो इसलिए वो वहाँ एक पहला स्टेप हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया. तो दिस राइट. इज व्हाट लाइक जर्नी था. तो जैसे आपने बताया, आई थिंक एक बार उसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. आपने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी बेसिकली उसको चेक करने के लिए कौन सी कंपनीज हर साल आती हैं. तो मतलब उससे आपको एक आइडिया मिल गया कि मतलब हाँ इन कंपनीज में प्रिपेयर करना इनके लिए वो होगा बेनिफिशियल होगा क्योंकि लिस्ट तो आई थिंक मार्च के बीच में कभी आती है ना. Yeah. So basically you get the finalized list but you can always search for no like if particular organization is coming for like they came for 5 years तो there's a high probability कि इस साल भी आएंगे right. राइट. तो you can टेक चांस ऑन इट. तो मैंने वही लिया कि मुझे पता था कि सर्न हर साल आता है तो लेट्स ट्राई ऑन इट. बट या बेसिकली जो फाइनलाइज लिस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का दैट वुड बी कमिंग इन मार्च. तो मार्च के स्टार्टिंग में ही आ जाता है एज फार एज आई रिमेंबर. एंड देन इन लाइक मार्च में ही यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द प्रपोजल्स एंड ऑल. आई रिमेंबर ऐसा ही कुछ होता है मार्च के राइट. लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में. राइट. तो जैसे कंपनीज के आने के पहले अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो मान लो हमने कोई कंपनी पे वो कर दिया आई थिंक जैसे आपने सर्न पे फिक्स कर लिया उसको लॉक कर दिया आपने. तो उसके बाद
उसको करने के बाद क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे आपने मेंटर से बात करनी शुरू की, लेकिन उस कंपनी को समझने के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए प्री कंपनी रिलीज पीरियड से हम क्या कर सकते हैं? So what happens, Samrat, ki when you're looking for a company or organization to be specific, like CERN or like Mozilla, like LibreOffice or Linux Foundation, so these are very big organization, and they have like a lot of projects ongoing projects. So CERN itself is a very big organization, and they have a lot of teams, lot of projects and all. तो होता क्या है कि बहुत लोग ना डर जाते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन देखा, प्रोजेक्ट लिस्ट देखा, डर जाते हैं कि इतने सारे चीज़ें हैं, मुझे तो ये चीज़ें नहीं बिल्कुल। आती है। बट होता क्या है कि बट व्हाट यू हैव टू डू नो कि सॉरी, मतलब एकलव्य वाला ही स्टोरी समझ लो कि मतलब तुमको ना एकदम अपना जो टारगेट है वो फिक्स कर लेना है कि हाँ ठीक है, मेरे को सी प्लस प्लस आता है, या फिर मेरे को पाइथन आता है, या फिर मेरे को से कोई स्पेसिफिक कोई लोग, कुछ लोग दे आर वेरी गुड एट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सो इफ दे आर गुड एट रिएक्ट नेटिव, यू कैन सर्च फॉर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये ऐसा नहीं होगा ना कि तुमको बोलेंगे कि भाई तुम आ जाओ और एकदम स्टार्ट स्क्रैच से काम करना स्टार्ट करो, ऐसा तो होगा नहीं कभी, बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर लिस्टेड इन जीसॉक, राइट? सो दे मस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर सम ईयर्स, तो उनका जो कोड बेस होगा बड़ा होगा, ठीक है? तो हम लोगों को डरना नहीं चाहिए कोड बेस देख के कि इतना बड़ा है। यू विल हैव टू वर्क ऑन पर्टिकुलर मॉड्यूल। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा ऐप है, उसमें से तुम्हें से उसमें एक म्यूजिक प्लेयर ऐड करना है, तो दिस इज वन वन पर्टिकुलर मॉड्यूल यू हैव टू वर्क। तो बस उस तुमको एक बार देखना है, मतलब स्किम करना है कि हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, क्या है, कैसे है, कोड बेस एक बार समझ लो। ये नहीं कि तुमको पूरा कोड बेस समझना ही है अच्छे से, बस यू हैव टू नो द फंक्शन कि ये फंक्शन यहाँ कॉलर है, ये यहाँ कॉलर, बस इतना समझो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये डर निकाल दो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा कोड बेस है, मैं समझूंगा ही नहीं, मुझे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी गो एंड सर्च ऑन देयर गिटहब प्रोफाइल, है तो देखो उनका गिटहब, नहीं नहीं है तो उनका अपना एक होगा कहीं ना कहीं, तो बिकॉज इट्स द ओपन सोर्स कम्युनिटी, राइट? सो द कोड विल बी ओपन सोर्स, सो यू कैन फाइंड द कोड, उनके पास जाओ। कोड गिटहब इज अ लाइक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, तो उधर तुम्हारा इश्यूज वाला एक टैब होगा, अगर गिटहब पे नहीं है तो कहीं और होगा, गिटलैब पे होगा, कहीं और होगा, तो उनका एक इश्यूज वाला टैब होएगा। इश्यूज मतलब कि अभी ऑनगोइंग इशू क्या है इस कोड में, या फिर कोई बग्स क्या है। जैसे कि मैं एक यूजर हूँ मोजिला का, मुझे देखा कि ये वाला पर्टिकुलर चीज़ खराब है, तो मैं जाके इशू क्रिएट कर दिया, एंड इफ़ यू आर द पर्सन हु सॉल्व दैट इशू, तो लगेगा कि हाँ ये बंदे ने इसको सॉल्व किया है, तो वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा ना मेंटर के कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे ने किया है। So this would be the first step to give, like, show your impact, so show that you are interested in that project, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि पहला स्टेप यही है कि तुम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है उसको छोटा करो, 2-3, क्योंकि यू कैन सबमिट 3 प्रपोजल्स, तो गो फॉर 3 और 4 और 5 स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर 5 में करोगे मेल तो हो सकता है कि 2 में आए, 3 में आए, तो 5-6 लोगों को ट्राई करो। फिर उसके बाद ट्राई करने के बाद देखो जिसने मेल किया है, सॉरी, तो उनसे ना कांटेक्ट बना के रखो। ये नहीं कि मतलब आज मेल कर दिया, कल रिप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उनके साथ ना वो कांटेक्ट, तीनों के साथ कांटेक्ट बना के रखो, एंड कीप ऑन वर्किंग विद देम, ठीक है? तो ये करने के बाद व्हेन यू गो विद द इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है यहाँ पे, व्हेन यू हैव कांटेक्ट विद योर मेंटर, अल्टीमेटली यू हैव टू सबमिट प्रपोजल टू बी सिलेक्टेड, राइट? तो इसमें क्या होता है कि व्हेन योर मेंटर नोज यू, तो दे विल आल्सो हेल्प इन रिव्यूइंग द प्रपोजल्स। इनफैक्ट मेरा जो प्रपोजल था, मेरे मेंटर्स ने उसको रिव्यू किया था, रिव्यू करने के बाद चेंजेस करवाए थे, उसके बाद सबमिट हुआ था। वाओ! सो these are the benefits you get when you know your mentor beforehand, right? बिल्कुल। So I think these are the like key points you should know about Google Summer of Code. And the most interesting part that I got to know about this year, so they have basically cut down everything to half, and this would be beneficial for other students, because अगर half सब कुछ कम कर दिया है, इसका मतलब कि जो लोग आने वाले हैं वो डबल हो जाएंगे, right? ओके। कैसे? Yeah, एक बार so समझा नहीं मैं, कैसे? हाफ एज इन लाइक द मॉनेटरी फंडिंग वाला हाफ हो चुका है जो कि स्टूडेंट को मिलेगा। तो इफ लाइक अगर जीसो के पास कुछ फंड है ओके। और हर एक स्टूडेंट को उसका हाफ दे रहे हैं, तो अब तो डबल स्टूडेंट आएंगे ना, और राइट, प्रोजेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे। राइट। सो दिस इज आई थिंक वेरी, आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि अब एब्सोल्युटली। अपॉर्चुनिटी
बढ़ चुका है, यानी कि 2 टाइम्स हो चुका है, एवरीथिंग इज हाफ, तो 2 टाइम्स तुम्हारा सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है. तो आई थिंक दैट. सेकंड थिंग, आई वुड suggest everybody to at least submit 2 proposals in one organization. सबको मैथ आता है, सबका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत अच्छा होगा, तो इससे तुम्हारा सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है. Okay. क्योंकि होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर 10 स्लॉट्स हैं, जिसका कल 10 स्लॉट्स हैं, एंड दे आर होस्टिंग 20 प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो हो सकता है कि तुमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वो स्लॉट में जा ही ना, क्योंकि वो लोग प्रायोरिटी लिस्ट करते हैं. तो अगर तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा बढ़ा ना सेलेक्ट होने का. तो आई वुड सजेस्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 और सिंगल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1. Even you can go for 3 projects in one particular organization. That can be done. Wow. Okay, that's a very good important point, that we can increase the number of projects for a particular organization so that we can get noticed more and we have more chance of getting the entry into one or the other project. Right. So like in the middle we started talking about proposals. Like proposal में मतलब क्या क्या डालना चाहिए जिससे सिलेक्शन का चांस बढ़े, क्या क्या माइंड में रखना चाहिए प्रपोजल को फॉर्म करते हुए, प्रपोजल को प्रिपेयर करते हुए जब हम लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं तो. Sure. For our like viewers, I can also give you the particular link of my proposal. People can refer Definitely. to that. Yeah, so उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो तुम. बट अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो व्हाट यू कैन डू, लाइक देखो प्रपोजल में होता है ऐसा है, ये नहीं होता है कि ना तुम पूरा प्रोजेक्ट करके दिखा दो उनको, क्योंकि अगर प्रपोजल में दिखा दिए होते तो फिर ये प्रोग्राम होता ही क्यों, राइट. इतना बड़ा टाइमलाइन तुमको देते हैं, तो होता क्या है कि एक ओवरव्यू देना होता है तुमको कि ठीक है मैंने ये प्रोजेक्ट लिया, सपोज we are working on particular say I was working on intelligent alerting system, तो उसमें मशीन लर्निंग का भी काम था. से आई एम वर्किंग ऑन अ मोबाइल ऐप. ठीक है. मोबाइल ऐप में एक मीडिया प्लेयर बना रहा हूँ. ठीक है. तो तुम उस मीडिया प्लेयर बनाने के लिए यू विल बी वर्किंग ऑन, इफ यू आर वर्किंग ऑन यूआई पार्ट, यूआई एज इन जो फ्रंट एंड पार्ट दिखता है, तो उसके लिए तुम एक सैम्पल बना के दे सकते हो कि ठीक है मेरा अभी यूआई ऐसा दिखेगा और इसमें ये फंक्शनलिटी हो सकती है कि प्ले बटन होगा, स्किप बटन होगा, वॉल्यूम अप डाउन बटन होगा, या फिर स्किप वर्सिक बार होगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एल्बम का फोटो होगा. तो दीज आर द थिंग यू कैन पुट इन प्रपोजल्स बिफोर, क्योंकि तुमको पता है कि ये सब चीज़ें मैं देने वाला हूँ, ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. भले वो तुमसे वो कोड नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तुम कोड लिख के दो, ऐसा नहीं होगा. व्हाट हैपेंस कि यू हैव टू पुट अ टाइमलाइन कि इस इतने समय से इतना समय मैं ये काम करूंगा, इतने समय से इतना समय ये काम करूंगा, एंड और तो ये एक ओवरव्यू तुमको देना पड़ता है. Okay. तो पूरा एक ओवरऑल यही प्रपोजल होगा. तो आई थिंक पीपल विल गेट मोर फ्रॉम माई प्रपोजल. तो उधर मैं एक लिंक दे दूंगा, यू कैन शेयर विद द people and they can take That it. will be lovely. That will be really good. Yeah. We will definitely share the proposal in the description. You can check it below. I'm sure that is going to be there. Right. So after, let us say, the process of submitting proposals, and we maintain some contact with the mentors and all, and let's say we get selected. So just for the idea of what happens in GSOC, could you tell us a little bit about how things work? Like when you get to GSOC, what is the timeline? What starts, and then how you proceed, and then how does it finish? And then after that, can you cap it off with some things that you think are the best things about GSOC? Why somebody should go for GSOC? Why should somebody spend all that effort and that time to become a GSOCer? Yeah. So basically, I told you before that I think I forgot it. So sorry. So basically, what happens कि GSOC में when you are selected, तो you will be working on a project for the entire time. Yeah, sorry, I remember now. तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि GSOC का जो भी चीज़ है वो हाफ हो गई, राइट. तो मेरे समय में वो 12 वीक्स था. मेरे समय में यानी कि मेरे से पहले जितने भी ईयर्स थे वो 12 वीक्स का प्रोग्राम था. नाउ इट इज़ 10 वीक्स प्रोग्राम. तो वो समय भी कम हो चुका है. ठीक है. तो प्रोजेक्ट भी जल्दी करना होगा तुमको. तो होता क्या है कि व्हेन यू आर सिलेक्टेड यू विल गेट अ 1 मंथ पीरियड, उसको कहते हैं कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड. सो उस समय यू गेट फैमिलियराइज्ड विथ योर कोड बेस, कॉन्टैक्ट विथ योर मेंटर्स एंड टीम्स, लाइक क्योंकि उस समय जब तुम बात करते हो तुम मेंटर से बात करते हो, लेकिन व्हेन यू आर सिलेक्टेड तो और भी जो बड़ी टीम होगी पूरी टीम से बात करोगे तुम. तो उनके साथ तुम्हारा बातचीत होगा एंड यू विल मोस्टली वर्क ऑन द कोड बेस. देखोगे कि टेस्ट करोगे कि कैसे काम करता है, क्या करता है. वो सबसे अच्छा समय है क्योंकि वो एक मंथ में तुमसे कोई काम नहीं पूछेगा. वो तुम्हारा मन है कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, दैट्स अप टू यू. बट
1 month में तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा. You have like all the time to ask questions, ask like how these things works and understand everything. ठीक है. उसके बाद things start from June 1st, I think. मई से लेकर जून तक पूरा ये कम्युनिटी बॉन्डिंग होता है. then things start from June and ends in August. तो ये वाला पीरियड कोडिंग पीरियड होता है, सॉरी या कोडिंग पीरियड होता है. then at my time there were 3 milestone you can say. तो 3 evaluations होते हैं where a student has to evaluate their mentors and mentor will evaluate you. तो उधर होता है क्रूशियल ये थिंग है कि अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया तो mentor even can fail you at the first step. ठीक है. and you will be declared like a failed GSOC candidate. तो उसके बाद तुम आगे नहीं जा सकते हो. ठीक है. वहाँ पर तुम स्टॉप हो जाओगे. इवन सेकंड पे भी तुम फेल हो सकते हो और थर्ड पे भी फेल हो सकते हो. ठीक है. तो अभी क्योंकि मैंने बोला कि सब कुछ हाफ या फिर थोड़ा बहुत काट दिया गया है, तो अभी बस 2 ही माइलस्टोन है. तो एक पहला होगा, एक फाइनल होगा. ठीक है. तो yeah, so this is the coding period that you do. You work with your mentor, you work with your mentors and you work with the code base. फिर टेस्ट करते हो, डिप्लॉय करते हो, सब कुछ इसी में होता है. डॉक्यूमेंट करते हो. क्योंकि when you're doing this kind of when you're participating in this kind of program, what happens ki you learn and you get the overall skills in industry. ठीक है. जैसे कि when you're doing computer programming, when you're learning something, you are just writing code. और वो code कैसा भी हो, like variables के नाम कुछ भी डाल रहे हो तुम, a equal to b, b equal to c, what is this. तो readability बहुत कम है. And that's what you learn when you're working with this when you're working with some organization, when you're working in this program. So you will learn how to document your code, you will learn how to increase the readability of your code, right? So you will also learn how to test your code because you will have to write some test cases for that. Okay. So these are the best thing that you will get from this program. You will learn how industry works, you will learn how things are beyond coding. मतलब you will write code, और if you are working in a software engineering industry, तो 80% जो होता है ना वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ सोचना, सिस्टम डिजाइन करना, and 20% is coding part only. So this will be the great opportunity to learn all this stuff. I think that will be a wonderful experience. Yeah. I mean, like ultimately people are going, if people are going for industry, if they are looking for a job, this is what they need, right? तो ये सब चीज़ें तुम सीख सकते हो कि जिस में कैसे काम होता है, तो वैसे इंडस्ट्री में भी काम होता है, and that will help you a lot. Right. I would also give you a link if people want to see what my work is about. So because I wrote one blog, so people can see like how things what I did in all this. उधर एक टाइमलाइन के हिसाब से तुम जाके GitHub पे भी देख सकते हो कि मैंने किस समय क्या कमिट किया, क्या किया. तो people can have some idea about it कि इतना बड़ा कोड बेस में मैंने एक छोटे से कोड बेस में काम किया था, मतलब एक छोटे से पार्ट में काम किया था. ऐसा नहीं कि पूरे कोड बेस में सब कुछ सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो उससे शायद कुछ लोगों को हेल्प मिल सके, थोड़ा बहुत डर भागे. एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि लोगों को थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिले, इसमें जाएं. इट्स अ रियली गुड थिंग टू हैव ऑन योर रिज्यूमे. द बेस्ट थिंग कि तुमको when you complete the GSOC, you will have a GSOC tag on your resume. You will have GSOC tag on Google career page कि जब भी तुम कभी भी तुम गूगल में कहीं भी अप्लाई करते हो करियर पेज जाके, तो your application will have that GSOC वाला tag अपने आप आ जाता है. तो that's one benefit. You will be I mean पता नहीं इंडिया में है कि नहीं, but ऐसे I have seen like in abroad, like people really appreciate if you are a GSOC guy. तो उससे भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता है रेज्यूमे पे. तो these are all things like best thing for people, and I think that's all. Yeah. Right. So I think that's a really a lot of useful things you've mentioned about GSOC. How you learn to write readable code, how you learn to write scalable code, how you learn to be a part of an organization which is not just about coding. Like you said, 20% only is the coding part. Everything is other parts are managing, design, coordinating, and all those things that are really important for being a really integral employee of a job. I think it's a really wonderful thing that everybody will get to explore all these things while doing GSOC.
So with that, I think we have a very good idea of the kind of experiences you've gone through. मतलब आपने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली आप मीडिया.नेट जैसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आई थिंक जैसे मैं फिर से वो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट आपका जो पर्सपेक्टिव है काफी ज्यादा ब्रॉड और एडवांस्ड है। तो इसकी वजह से मतलब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था, जो कि विच आर ऑफ द ट्यून दैट what are some indispensable things that we should keep in mind as we're completing the college journey? What are the things that are essential? It can be anything that is essential for succeeding in this field. Sure, Samut. Yeah, this is a really good question. So, uh, I would say कि जैसे कि सीसी और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा उससे प्रेशर डाला था, बट आई वुड ऑल्सो, और जीसो के बारे में हमने बात कर ली है, तो पीपल हैव सम आइडिया, लाइक आई विल टॉक ऑन बोथ ऑफ देम। तो या डेफिनेटली यू हैव टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्योंकि बहुत मैं फिर से कोडिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कोडिंग सबको आनी चाहिए। इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, दिस इज वेरी स्टूपिड इफ यू आर सेइंग आई डोंट नो कोडिंग एंड यू आर इन कंप्यूटर साइंस, बट या यू शुड लर्न डीएस एंड एल्गो, जो कि इफ यू आर लर्निंग दिस फॉर गेटिंग अ जॉब। तो डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन टू नॉट डू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग। जो लोग को पसंद नहीं आता है या फिर जो लोग उतना नहीं समय दे पाते हैं, उनको वो चाहते हैं कि मतलब मुझे जॉब करना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। तो उसके लिए लीड कोड पे जाओ, लीड कोड पे काम करो और उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। दूसरा चीज़, when you're working in an industry, ठीक है, when you're working in a company, तो you have to work with a team। ऐसे अकेले काम नहीं करते, you have to work under team, you have, तो उनका ना पूरा विजन लेके चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि तो जो भी तुम कोड लिखोगे वो चलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको सीखनी पड़ती है। तो जिस के लिए मैंने बताया वो काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। तो वो चीज़, ये चीज़ सब चीज़ें तुम सीखते हो वहाँ पे जब एक इंडस्ट्री में काम करते हो। तो हाउ टू कोलैबोरेट विद द टीम, हाउ टू टॉक विद देम, हाउ टू जो तुम काम कर रहे हो उनको समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तुम सीखते हो वहाँ पे। तो एक प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है इसके लिए। सो दैट्स माई कंक्लूजन आई कैन से। तो कोडिंग, लीड कोड करो, लीड कोड भी करते करते यू नीड टू हैव, जिससे तुमको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। यू कैन वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, जाके गिटहब पे चेक कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो जिस वक्त ख़त्म होने के बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लिस्टेड है उनके पास जाके काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जिस वक्त अगर चल रहा है उसी वक्त काम कर रहे हैं उसके बाद वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो दे आर ओपन सोर्स कम्युनिटीज़, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो उनके उनके ख़त्म होने के बाद। इनफैक्ट अभी जाके जब ये लोग देख रहे हैं तभी मैं बोल रहा हूँ, यू कैन गो टू एनी जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, उनके पास जाके देखो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या फिर कोई ऐसे इशूज हैं जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। इवन यू सॉल्व वन सिंपल बग, तो वो भी तुम अपने गिटहब प्रोफाइल में डाल सकते हो या फिर अपने रिज्यूमे पर डाल सकते हो कि मैंने मोजिला फायरफॉक्स का ये पर्टिकुलर बग ठीक किया। तो these are all benefits for you। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करते रहना चाहिए ताकि आई मीन लाइक ऐसे भी नहीं कि मतलब ना, यू शुड बैलेंस एवरीथिंग, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मतलब केवल कोडिंग ही कर रहे हैं और इधर कोडिंग ऐसे मतलब फिर से वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही कर रहे हैं और इधर इधर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। जो लोग स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में जिनका हैबिट जिनका हॉबी है करना, जिनको पसंद आता है करना, तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन अ कंपनी, तो यू विल सी दिस कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज़ें काम नहीं हो रही हैं, ढंग से हो नहीं रहा है। यू आर हैबिचुएटेड ऑफ राइटिंग int a rather than writing int sound volume or something like that। Right, So right. these are things you learn, you know। तो ये सब चीज़, और इनफैक्ट if you are interviewing for very good companies, not companies like Google or Microsoft, you need to learn this कि ऐसे जाके तुम उनके इंटरव्यूज में a equal to something लिखोगे तो वो लोग तभी समझ जाएंगे कि ये क्या है। हाँ, तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट भी करो, साथ में इसको भी एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर एज इसको ना कंटिन्यू रखो, ऐसा नहीं कि मतलब 6 महीने किया कंप्यूटर कोडिंग और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, लाइक इट मेक्स यू परफेक्ट व्हेन यू प्रैक्टिस। तो इसको करते रहो। और ये तो किया, कंप्लीट किया, छोड़ दिया,
GitHub पे डाल के, फिर से दूसरा काम किया, फिर कंप्लीट करके छोड़ दिया GitHub पे डाल के. तो that's how things work. And I would reveal here कि right now Coda ST is working on great projects right now. They have been working on their websites, and they're also working on some platforms such as similar to CodeShare, where you can write code and they will judge you. It's an online judge system. So they are also working on that. So people can go and work at their home. Home, by home I mean Coda ST. So you can work there. You can also start working on GSOC for that, because time's coming. So Right. that's Right. what I would say. Yeah. Right. To summarize, like what Rahul Bhaiya has said, he says it's very important, like we established earlier, to have open source experience for the sake of understanding how to write readable and scalable code for organizations. Then try to maintain a project as well, because a project will teach you a lot of things about managing and designing how you will work and how you will design the whole product or whatever you're making. So a project is very good for the experience. And of course, like we established earlier, a little bit of competitive coding to supplement your interview process and make sure that you are safe when it comes to trying for big companies or any other companies that you're aspiring for. So with that, Rahul Bhaiya, I would like to ask you for your final words of wisdom. All the technical things aside, what are your final ideas on how we should, go on, and like your wisdom about the whole life that we're leading? Yeah, from my experience, like I have seen people regretting, uh, even though like they have a lot of things, like they have achieved things, even though they regret at some point, like I should have done that, I should have done this. And that's very problematic. I mean, like, you have achieved a lot of things. You should not regret. ऐसा होता है कि मतलब कभी ना कभी सभी के सभी में ऐसा समय आता है कि जो उसमें उसमें डूबे मत रहो, उससे थोड़ा सा उससे जो चीज़ तुमने छोड़ा है या फिर जिससे तुमको लग रहा है कि रिग्रेट होना चाहिए, उससे उससे मोटिवेशन लो, उससे और काम करो, डू द स्मार्ट वर्क, एंड balance is the key. And yeah, Right. and festive season, happy Diwali to everyone. And Yes. Yes. most Yes. important thing that right now is in this COVID situation, people are missing, like you guys are missing your friends and everyone. So try to uh, have some sessions, or talk with your friends and be with them. It's like, this is the I think I would contradict myself right now, because I just said we will start feeling, we all regret at some point, but we all final year students are regretting for one thing, that we didn't get the time to have some memorable time with them in the last moment of time because of this COVID situation. But yeah, so from that learning, I would say कि तुम लोग ऐसे साथ में रहो, बात करो, and that would be my final words. Right, right. Yeah. I think that's wonderfully put. So with that, I think we can wish everybody happy Diwali. I hope you really loved this Yeah. session. We'll give you even more of them in the future. और So बिहारी with that, बिहारियों के लिए हैप्पी छठ. Bihariyo ke liye happy Chhat. Right. So thank you, Rahul Bhaiya. It was really great having you. I'm sure a lot of people learned a lot of things from you today. So with that, I'd like to say goodbye. Yeah. Goodbye. All right. Bye bye.